Okay, so this first question is regarding basically the solo mission. So this solo mission was you can say done by both NASA and the European जी स्पेस एजेंसी है, तो वो दोनों ने ये मिशन किया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है. सो इट इज सोलर ऑर्बिटल जर्नी. सो प्लीज रीड अबाउट दिस मिशन वेरी वेरी मच इन डिटेल. So it will make a closer visit to sun than any other man-made space objects. No, this is wrong. Okay, हमको क्या पूछा है उन्होंने? They have asked us to find out the correct statement. So this statement is wrong. Why? क्योंकि दूसरा जो उनका सोलर मिशन था, that is Parker Solar. So it has gone nearer, right? So this is not a correct statement. So this has to be a wrong statement. This is gone. So immediately elimination करोगे आप. Okay, so this is gone. So 3 has to be correct because 3 is common in both of the, you can say, options. So you just have to read the this one, second one. तो आपको third वाला पढ़ना भी नहीं है. It will remain within the elliptical plane to study about the sun's polar region. So no, it is not going to remain about you. If you could see here, are you understanding? It is not going to remain. So the answer here has to be, you can say, 3 only. So answer here has to be on 3 only. Okay, so that is why B is the answer. If you see, B has to be the answer. Now second is a very good question which tests the application basically. So in 2012 it says that government decided to fill public service posts without reservation. Later this was sued in Uttarakhand High Court. In 2019, that High Court directed the state government to implement reservation. Which of the following instruments best explains that High Court's direction? Okay, so if you see this, then the answer has to be, you can say, mandamus. Mandamus का मतलब क्या होता है? Literally, we command, right? So High Court is commanding because it has directed, right? The High Court has directed the government to implement the reservation. So High Court ने क्या किया हुआ है? उनको ये मैंडेट दिया हुआ है कि उनको ये सुनना ही है. दैट इज वाई ये मैंडमस आना चाहिए इसका आंसर. हेबस कॉर्पस नहीं आना चाहिए. हेबस कॉर्पस क्या है? प्रेजेंट द बॉडी. ओके, सो हेबस कॉर्पस क्या है? You can say it is present the body, so that is not going to come. Prohibition is again not going to come. Certiorari is not going to come. It has to be mandamus. Okay, so very straightforward. Next, if you see, Madhyamika and Yogacharya schools are related to which of the following? So this has to be, अगर आप देखते हो, देखो यहाँ पे study of Mahayan philosophies. If you can see this, okay, so this is very famous. अगर आप महायान का ही एक फॉर्म जो है, that is you can say, जो वज्रयान है, that is gone to, you can say, Tibetan areas. And basically यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आपका ये वज्रयान. Okay, so महायान से इन्फ्लुएंस्ड है वज्रयान, और हीनयान से इन्फ्लुएंस्ड है हमने जो देखा था हमारे आर्ट एंड कल्चर में, दैट इज थेरवाड़ा. ओके, एंड ज़ेन बुद्धिज्म जो है, ज़ेन बुद्धिज्म, सो ज़ेन बुद्धिज्म इज प्रैक्टिस्ड मोर इन जापान. ओके, और इट इज प्रैक्टिस्ड मोर इन, यू कैन से, चाइना एंड जापान, आउटसाइड इंडिया. ये किसके ऊपर, ज़ेन मतलब क्या होता है, ये किसके ऊपर ध्यान देता है? ये ध्यान देता है ध्यान के ऊपर. दैट इज मोर, इट गिव्स द फोकस ऑन meditation. That is why it is called as Zen Buddhism. Okay, so we have discussed this different, you can say, schools of Buddhism here. So if you could see, it is directly from Mahayan Buddhism. और UPSC MPSC हमेशा फोकस कर रहा है ना कि जैनिज्म बुद्धिज्म पे क्वेश्चन पूछेगा. So a little bit out of, you can say, box, we have asked this question. And if you could see, then it is Madhyamika. It is directly Mahayan philosophies. Okay, so एकदम ये क्लियर है. अभी इकोनॉमिक्स का जो अगर आप देखोगे क्वेश्चन, सो इट हैज अगेन टेस्टेड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. इफ यू सी इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस, ओके, सो लेट अस सी दिस. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देखो आजकल इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा ट्रेंड क्या है? इनइक्वालिटी का ट्रेंड है. इसके लिए थोड़ा इक्वालिटी के ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. ब्रिंगिंग इक्वालिटी थ्रू वेल्थ redistribution can be effectively achieved by increased dependence on indirect taxes rather than direct taxes. No, this is wrong. Are you understanding this? Why this is wrong? क्योंकि हमको पता है कि indirect taxes क्या है. देखो अभी इंडिया में क्रिटिसिज्म क्या होता है? जीएसटी. जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स. क्रिटिसिज्म क्या होता है इंडिया में कि
जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सबके ऊपर लगने वाले हैं, पुअर के ऊपर भी लगने वाले हैं, रिच के ऊपर भी लगने वाले हैं। जीएसटी जब आया था तो क्रिटिसिज्म क्या हुआ था कि अगर आप बिस्किट खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर कितना टैक्स है, 18%। ओके, मुकेश अंबानी वुड ऑल्सो बाय अ बिस्किट and the poorest of poor would also buy a Parle-G biscuit. So both of them are paying 18% tax. So is the income redistribution going to happen through indirect tax? नहीं, डायरेक्ट टैक्स से होता है। क्यों? आपका अगर आप इनकम कमाते हो तो ही आप डायरेक्ट टैक्स भरोगे ना। सो दिस स्टेटमेंट, दैट इज व्हाई यू कैन से डज नॉट, यू कैन से does not fulfill the wealth redistribution norm. So this has to be wrong. India uses proportionate policy for taxing the income of the individuals and the companies. Proportionate है क्या? Proportionate में क्या होता है कि irrespective of your income आप एक ही टैक्स स्लैब के हिसाब से सबको टैक्स करोगे। मतलब अगर आपने 10% पकड़ लिया तो मेरा इनकम अगर 1 लाख भी है और मेरा इनकम अगर 1 करोड़ भी है तो आप मेरे पास से कितना लोगे? यू वुड टेक ओनली, यू कैन से 10%. दैट इज प्रोपोर्शनेट. तो हम प्रोपोर्शनेट लेते हैं क्या? नो, वी डोंट टेक प्रोपोर्शनेट, राइट? सो वी डू, you can say which kind of this tax policy we follow. We follow the policy of, you can say, progressive tax policy, taxation हम follow करते हैं, right? Okay, so that is why this also has to be wrong. That is why the answer has to be neither. Yes, anybody has any doubts? You can ask. Okay, chalo, we'll go to the next one. Very, you can say, interesting question. Okay, UPSC पूछता है ना कि स्ट्रेट लाइन में क्या है, तो बैंगलोर है क्या, ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इसके लिए मैप बेस्ड ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज फारदेस्ट फ्रॉम द, यू कैन से, सी? ओके, सो फारदेस्ट फ्रॉम द सी, इफ यू कुड सी, आइजवाल, वेरी, यू कैन से, नियर फ्रॉम द सी. ओके, रांची भी नियर है सी से, भोपाल little far, and Hyderabad is also little, you can say, far. But here the answer, if you see, then it has to be, you can say, A, that is Bhopal, because it is right in the middle. That is why Madhya Pradesh. Okay, so answer has to be Bhopal. Next, again a very very interesting question. Okay, देखो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको बहुत से इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है 2020, तो अगर हम 100 साल पहले जाते हैं 1920, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम 1920, बहुत सारी चीजें वहां पे 1920 में हुई है, अलग अलग चीजें। तो ये सारे चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हिस्ट्री में पूछेंगे 100 साल पहले का। ओके, और मेन सबसे चीज क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है ना, जो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशन पढ़ा हुआ था, नागपुर सेशन, राइट, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920, जो एक गेम चेंजिंग सेशन था। ओके, तो उसके वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नॉन कॉपरेशन पे इसके लिए एक क्वेश्चन हमने भी यहाँ पे पूछा है। क्या है नॉन कॉपरेशन का ये क्वेश्चन? इट वाज अप्रूव्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन स्पेशल सेशन एट कलकत्ता. नो, सो इट वाज नॉट, यू कैन से, अप्रूव्ड एट द स्पेशल सेशन और एट कलकत्ता. ओके, सो बेसिकली जो है ये फाइनल इसके ऊपर जो डिसीजन है वो लिया गया था इन द नागपुर सेशन इटसेल्फ, राइट? एंड कांग्रेस सेशन जो है, स्पेशल सेशन इन कलकत्ता इन 1920, दैट वाज हेल्ड अंडर द, यू कैन से, लीडरशिप ऑफ नॉट वीर राघव चरुलू, बट इट वाज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लजपत राय, right? So this is not a correct statement. This is not a correct statement. Automatically ये और ये correct पूछा हुआ है ना, तो ये और ये हमने eliminate कर दिया. 3 has to be the correct. Okay, 3 पढ़ना ही नहीं है हमको, सिर्फ क्या पढ़ना है? 2 पढ़ना है. तो 2 क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल फाउंडेड राष्ट्रीय विद्यापीठ. Okay, so if you could see this, this is the राष्ट्रीय गुजरात विद्यापीठ which is there in अहमदाबाद. Okay, so जो नेशनल एजुकेशन का पूरा उस टाइम पे वेव क्रिएट हुआ था, तो ये नेशनल एजुकेशन के वेव में ये राष्ट्रीय विद्यापीठ बना था अहमदाबाद में. एंड यू शुड नो हु एस्टैब्लिश्ड इट. यू कैन से एमजी गांधी एस्टैब्लिश्ड इट, एंड ही वाज द चांसलर टिल द वेरी एंड ऑफ हिज लाइफ. सो टिल ही सर्वाइव्ड, ही वाज द चांसलर ऑफ राष्ट्रीय विद्यापीठ एस्टैब्लिश्ड इन अहमदाबाद, एंड इट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल. सो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अच्छे से आप इसको मतलब पढ़ लो. Okay, this is a very important fact. Okay, so Indian merchants and mill owners enjoyed good profits. Okay, so basically they enjoyed good profits, not at all a, you can say, problem. So that is why here the answer has to be 3. Next, high availability of low wage worker, low wage labor
lack of advanced skilled labor, okay, then per capita income more than 1000. Which of the conditions mentioned can be observed in the middle can be observed in the middle income trapped economies? अब ये मिडिल इनकम ट्रैप इकोनॉमीज अगर आप देखोगे तो लास्ट टू लास्ट ईयर के पहले का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, ओके, सो इट वाज द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 17-18, वो जो इकोनॉमिक सर्वे आया था वो बोल रहा था कि इंडिया कैन, यू कैन से फॉल इनटू दिस ट्रैप ऑफ, यू कैन से मिडिल इनकम इकोनॉमीज, ओके। तो मिडिल इनकम इकोनॉमीज में क्यों हम फंस जाएंगे? क्योंकि अभी तक हम बहुत अच्छा ग्रो किया। क्यों बहुत अच्छा अगर हमने ग्रो किया? क्योंकि हमारे पास लेबर जो अवेलेबल था वो बहुत सस्ता लेबर अवेलेबल था, एंड बिकॉज सस्ता लेबर अवेलेबल था हमारा ग्रोथ भी अच्छा होगा। बट चाइना का कैसे हो गया अभी? द लेबर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। सो मिडिल इनकम ट्रैप में जाने का ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता है कि लो वेज लेबर अवेलेबिलिटी। अभी क्या हो जाएगा, लेबर ज्यादा पेमेंट मांगेगा क्योंकि आपका पॉपुलेशन भी कम होगा एंड लेबर इज लेस, सो दे वुड यू कैन से डिमांड हाई वेजेस, एंड हाई वेजेस की वजह से आपको कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा, इसके लिए आप मिडिल इनकम में अटक जाओगे। सो दिस इज क्लियरली, आई थिंक दिस इज द रॉन्ग थिंग। अगर ये मैं निकाल देता हूं, और क्या पूछा हुआ है, करेक्ट पूछा हुआ है, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो automatically 1 is gone, so 2 and 3 remains. You can automatically come to the answer, that answer has to be C, okay? तो ऐसे एलिमिनेशन से आप निकाल सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो, ओके। अगर आपको कोई डाउट है ये इसमें, तो कौन से भी आपको इसमें एमसीक्यू में डाउट है, यू कैन ऑलवेज, यू कैन से unmute your mic and ask, or even you can ask me on the personal chat, okay, not an issue. Microgravity, okay, Sir. space में, yes, anybody? Mic is, मोहिनी सर. yes, मोहिनी बोलो. सर, जर लेबर हाय स्किल नसेल तर मग त्यांना वेजेस जास्त का मिळतील? कारण की कसं होतं की आता चायनामध्ये इफ द लेबर इज नॉट high skilled, say for example, okay, but your country has developed, your country's per capita matlab income has increased, your GDP has increased, and the basically what has happened is the availability of labor is less, okay, तो डिमांड एंड सप्लाई है, okay, तो अगर डिमांड ज्यादा है लेबर का और अभी अवेलेबिलिटी लेबर का कम होने वाला है आपकी कंट्री में, क्यों अवेलेबिलिटी कम होने वाला है आपका? आप देख रहे हो ना हमारे भी कंट्री में क्या हो रहा है, अभी TFR कम हो रहा है हमारे कंट्री में, ओके, तो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का कम हो रहा है, प्लस सब लोग एजुकेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं। एजुकेशन इज नॉट इक्वल टू स्किल्स, वो तो हमको पता है, बट एजुकेटेड है। और सबके अगर पेरेंट्स हम देखेंगे तो आइदर देयर इज वन चाइल्ड और टू चिल्ड्रन, so if there is one child or two children, then what do they think? The parents want that they should get the best for their kids, okay, they should not work at the low wages, okay, so यही प्रॉब्लम हो रहा है ना मिलेनियल चाइल्ड जो होता है। तो मिलेनियल चाइल्ड का प्रॉब्लम क्या है कि एवरी चाइल्ड थिंक्स दैट ही और शी इज स्पेशल, सो दे डोंट वांट टू डू नॉर्मल वर्क, okay, so that's why they are not going to work at a low wage even if they are not contributing that much. पहले कैसे था? पहले बहुत सारे बच्चे थे, पॉपुलेशन बहुत सारा था। आप देखो ना, अगर आप मूवीज भी देखते हो, मूवीज इज अ गुड, यू कैन से मिरर ऑफ द सोशल कंडीशंस। अगर आप मूवीज देखते हो, से 70s 80s 90s तक के मूवीज देखते हो, नौकरी लगना ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता था मूवीज में भी, मिठाई बांटो, नौकरी लग गई आपकी, मतलब दे वुड नॉट आस्क कि क्या है क्या नहीं सैलरी, बस नौकरी लग जाना बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम पे। बट अभी ऐसा नहीं है ना। सो ऑटोमेटिकली एज योर कंट्री इज गोइंग टू स्टार्ट डेवलपिंग एंड द पर कैपिटा इनकम, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक बार 1000 के ऊपर जाने लगा, मतलब कंट्री आपका डेवलप हो रहा है, रिसोर्सेज आ रहे हैं कंट्री के पास, तो फिर लो अवेलेबिलिटी एट लो वेज लेबर नहीं रहने वाला है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी भी हम देखते हैं एमजी नरेगा एंड ऑल दोस थिंग्स की लेबर अगर नहीं भी है तो भी दे आर गोइंग टू आस्क फॉर वेरी हाई wages. So first has to be clear cut wrong. Have you understood it? Yes, sir. Okay, we'll go to the next one. Okay, now this is a देखो स्पेस में बहुत सारी चीजें हो रही है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आपको इसके लिए पढ़ना है। और स्पेस टेक्नोलॉजी में ये जो कंसेप्ट है माइक्रोग्रेविटी, ओके, ये तो बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, बहुत ही फेमस कंसेप्ट है माइक्रोग्रेविटी, तो इसके बारे में तो हमको पता ही होना चाहिए। ओके, सो इफ यू आर अ लिटिल वीक इन फिजिक्स, इफ यू थिंक दैट मेरे को फिजिक्स के थोड़े कंसेप्ट्स नहीं समझ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जो टीएमएच का गाइड आता है, जीएस मैनुअल, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें साइंस में फिजिक्स दिया हुआ है, इनिशियल 30-40 पेजेस, इफ यू जस्ट रीड दैट यू विल
हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉन्केव लेंस क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिस्पर्शन क्या होता है, केपलर लॉस क्या है, वो सारा उसमें दिया हुआ है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। जस्ट यू कैन से आजकल बेसिक्स के ऊपर तो नहीं पूछ रहे हैं, सारा करंट और एप्लीकेशन पे ही है, बट स्टिल अगर आपको रिवाइज करना है देन इट इज अ वेरी गुड एंड ब्यूटिफुल सोर्स। ओके, माइक्रोग्रेविटी refers to zero gravity conditions present in the outer space. So it is not zero gravity conditions, it is very very you can say less gravity hota hai wahan pe, but we cannot say that it is a zero gravity condition. Okay, so it would not be prudent to say it is a zero gravity. And what they have asked, हमेशा क्या करो, देखो सॉल्विंग में आपको सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है वो भी डिस्कस कर रहे हैं। सो ऑलवेज जो डायरेक्टिव वर्ड होता है करेक्ट, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, उसको सर्कल कर लेना है। करेक्ट पूछा है कि इनडायरेक्ट इनकरेक्ट पूछा है, तो करेक्ट पूछा है ना, सर्कल कर लो। और अभी यहाँ पे क्या पूछा, इट रिफर्स टू जीरो ग्रेविटी, मेरे को लग रहा है कि रॉन्ग है। ओके, सो एटलीस्ट आई कैन एलिमिनेट, यू कैन से वन ऑप्शन। ओके, then international space station's movement around the earth is determined by it cannot be determined by it। क्यों? क्योंकि देखो मेरे को कुछ नहीं आता फिजिक्स, आई एम नॉट एट ऑल एक्सपर्ट इन फिजिक्स, बट बेसिक तो भी समझ हमको है। क्या समझ है, अर्थ यहाँ पे है, एंड इफ द यू कैन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इफ देयर वाज नो ग्रेविटी और इट वाज जीरो ग्रेविटी, तो वो अट्रैक्टेड रहता है नहीं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चला जाता कहीं तो आउटर स्पेस में, यस और नो, तो उसको बने रहना है, ऑर्बिट में उसको घूमना है, तो उसको कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन लगेगा ना, एंड दैट इज गोइंग टू बी द ग्रेविटेशनल पुल। सो माइक्रो ये जो है ग्रेविटी, इट इज नॉट गोइंग टू यू कैन से डिटरमाइन दिस, सो ऑटोमेटिकली दिस ऑल्सो गोज। ओके, सो यू जस्ट हैव टू रीड आइदर 3 और 4 एंड द आंसर इज गोइंग टू कम, क्योंकि अगर 3 और 4 में से एक भी करेक्ट है आपका, तो ये तो आंसर होने ही नहीं वाला है आपका। ओके, इट इज इजी टू मूव हेवियर ऑब्जेक्ट्स इन द माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट, एब्सोल्युटली यस। आपने देखा होगा कि यू कैन से जो स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाते हैं, यू कैन से ह्यूज थिंग्स, दे आर जस्ट यू कैन से पुशिंग हियर एंड देयर थ्रू देयर फिंगर टिप्स, सो इट इज करेक्ट। सो इफ द थर्ड इज करेक्ट देन द आंसर हैज टू बी यू कैन से 3, इट डज नॉट हैव टू बी 4। आपको फोर्थ ऑप्शन पढ़ना भी नहीं है, बट एक बार यू कैन सी माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इवन ऑन अर्थ। यस, हमने तो ये पढ़ा, अगर कोई भी साइंस का आपने बुक पढ़ा होता तो आप तो ये पढ़ते ही हो कि जो ये अम्यूजमेंट पार्क्स है, तो आप रोलर कोस्टर में इधर से अगर ऐसे जा रहे हो तो इट इज यू आर एक्सपीरियंसिंग माइक्रोग्रेविटी, और एलिवेटर इफ द स्ट्रिंग इज यू कैन से कट, और व्हेन इन एरोप्लेन्स व्हेनेवर यू हैव यू कैन से this kind of trajectory. Okay, so all these things you have this micro you can say gravity conditions which you can also experience on the earth, so that is why fourth also has to be correct। ये दोनों में से आपको एक भी समझ गया अगर करेक्ट है तो आपका आंसर आ सकता है। ओके, नाउ this is a question from somebody from our batch. They said that sir, ask 1 or 2 questions from the previous year question paper so that we can see and test ourselves whether we are ready। So ये directly previous year question paper में से ही है। Leaves are absent or reduced in size। Okay, leaves and stems are succulent, even the stem may contain chlorophyll and photosynthesis। Okay, तो ये कौन सा ecosystem होगा? So this is a very very simple you can say question। It has to be desert ecosystem। ओके, बिकॉज तो ही क्या होगा कि स्टेम में भी क्लोरोफिल है, ताकि प्लांट जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है उसके रिसोर्सेज का, मिनिमम रिसोर्सेज होंगे डेजर्ट में तो उसका। ओके, सो दैट इज द आंसर। नाउ इफ यू सी दिस वन, अरेंज द स्टेट्स, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ देयर अर्बन पॉपुलेशन। तो सर आपने कहा से ये एकदम ही अर्बन पॉपुलेशन पूछ लिया हमको, तो अभी सेंसस की बहुत चर्चा चल रही है ना, तो थोड़ा सेंसस के ऊपर, पिछले सेंसस के ऊपर, अभी नए सेंसस का तो डेटा इतना आएगा नहीं आपके पास क्लैरिटी से, तो पुराने सेंसस का आपको क्वेश्चन एकदम ही पूछ सकते हैं कुछ तो इसके लिए हमने क्या पूछा है कि अर्बन पॉपुलेशन। अभी अर्बन पॉपुलेशन ये 4 स्टेट्स आप देख रहे हो, तो उसमें से आप तो एकदम क्लियरली बोल सकते हो कि आपने पढ़ा भी नहीं सेंसस, तो महाराष्ट्र नंबर 1 होगा। ओके, उन्होंने क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो महाराष्ट्र हैज टू बी द लास्ट वन, सो ऑप्शन हैज टू बी बिटवीन सी एंड डी। तो ये दोनों तो आपने पहले ही आप बोल सकते हो एलिमिनेट कर दिया। महाराष्ट्र क्यों लास्ट होगा? क्योंकि कर्नाटका आप देखते हो तो कर्नाटका में हार्डली देयर इज 1 यू कैन से बिग अर्बन सेंटर, और मैक्सिमम 2 यू कैन से, बट 1 मेजर अर्बन सेंटर दैट इज बैंगलोर। और फिर बाकी अगर देखोगे आप तो मैंगलोर है, या फिर
you can say Belgaum and that region. But in Maharashtra, if you see, Nagpur is there, Pune is there, Mumbai is there, Nashik is there, Kolhapur is there. Okay, so urban has to be more focused in Maharashtra. So Maharashtra has to be last. At least you have come, you can say, between C and D. Now if you have come between C and D, then आपको ये दोनों में से सिर्फ चूज करना है, राइट, कि 2 पहले है या 1 पहले है. तो 2 क्या है? बिहार, और 1 क्या है? मध्य प्रदेश. तो बिहार यू नो ओनली 1, दैट इज पटना. ओके, बट दिस मध्य प्रदेश अगेन हैज सम पॉकेट्स व्हिच यू कुड सी. तो मेरे को सेंसस पता नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू लॉजिक इट आउट. मध्य प्रदेश में क्या है? इंदौर है. मध्य प्रदेश में क्या है? भोपाल है. मध्य प्रदेश में क्या है? यू कुड सी वो जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में ना, which is that place, I'm not able to recollect, but there also you have got urban pocket. So basically I would always try and say that Madhya Pradesh would have more. तो ऐसे मैंने लॉजिक से ये सॉल्व करने को मैं ट्राई करूंगा. So I would say that the answer here, अगर हम देखेंगे इसका, तो बिहार फर्स्ट होना चाहिए, देन मध्य प्रदेश, देन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. So the answer has to be D. And because it is not expected that you learn all these things, तो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको. आप 50-50 पर तो आ ही गए, तो आपको मार्क करना ही है, तो ही आपके 90 सॉल्व होंगे, 85 के ऊपर सॉल्व होंगे, नहीं तो सॉल्व होने ही नहीं वाला है. Okay, so there you will have to use this kind of logics and try to solve it, because it is very difficult that you learn all this data. अगर डेटा वाइज देखोगे आप, तो बिहार इज ओनली 11-12% urban population, then Madhya Pradesh is 27%, then Karnataka, if you see, then Karnataka is 38% and Maharashtra is 45% according to the census 2011. But ये figures कुछ हमको learn नहीं होने वाले है ये इतना, तो इसके लिए आपको ये टेक्निक से ही I guess you will have to solve little bit. That is what I feel. Okay, so let us go ahead. Now again a good interesting question जो कि आपकी कॉन्सेप्ट चेक करेगा. आपको थोड़ा बैकफुट पे जा सकते हो अगर आपको लगता है इकोनॉमिक्स इज नॉट योर स्ट्रॉन्ग फोर्टे, बट इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी, इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. कितना कॉन्फिडेंस है आपको. अगर आपको ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस है आपको, इकोनॉमिक्स आपको बहुत अच्छे से आता है, तो नहीं भी आता होगा तो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे. बट अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अटक जाओगे. ओके, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कंज्यूमर सेंट्रिक जीडीपी कैलकुलेशन मेथड. अभी आप, अरे कंज्यूमर सेंट्रिक, ये तो कुछ तो नया है, सिलेबस के बाहर है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, सर ने पढ़ा ही नहीं. यू स्टार्ट ब्लेमिंग, इकोनॉमिक्स और अच्छे से करना चाहिए था, सर ने पढ़ाया नहीं, सर ने अच्छे से इकोनॉमिक्स हमको पढ़ाया नहीं. यू स्टार्ट ब्लेमिंग आइदर योरसेल्फ और एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो ये सब करो मत, दिमाग लगाओ. इकोनॉमिक जो हम जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड्स देखते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं वहां पे, अगर आप बेसिक भी देख लेते हो तो यू कैन से आप प्रोडक्शन मेथड से कर सकते हो, आप यू कैन से इनकम मेथड से जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट. एंड दूसरे क्या मेथड्स होते हैं, वन इज एट द फैक्टर कॉस्ट एंड अदर इज एट द मार्केट प्राइस. ओके, तो अभी ये आपको, आपका बेसिक्स है, एकदम बेसिक है. कौन सा भी आप इकोनॉमिक्स का बुक पढ़ोगे, नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ोगे, मैंने अगर आपको शंकर गणेश भी पढ़ने लगाया है तो उसमें यही आपको मिलेगा, कंज्यूमर सेंट्रिक जीडीपी कैलकुलेशन निकालो. बराबर है क्या नहीं. तो अभी अगर आपने ये शंकर गणेश या कौन सा भी, यार हमारे नोट भी पढ़े हुए हैं आपने, तो आपको पता है जीडीपी कैलकुलेशन कैसे होता है. ओके, अभी जीडीपी कैलकुलेशन कैसे होता है, तो उसमें पूछा है कंज्यूमर सेंट्रिक. कंज्यूमर सेंट्रिक मतलब क्या होने वाला है, एट मार्केट प्राइस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस. तो मार्केट प्राइस अगर डायरेक्टली पूछा होता तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन. इसके लिए उन्होंने क्या किया है, वर्ड घुमा दिया है, कंज्यूमर सेंट्रिक आपको पूछ लिया है, दैट इज मार्केट प्राइस पे आपको निकालना है. अगर मार्केट प्राइस पे आपको निकालना है तो हम क्या देखते हैं मार्केट प्राइस में, व्हाट डू वी ऐड इन सब्सिडीज. एंड बेसिकली व्हाट डू वी डू, वी बेसिकली जो मार्केट प्राइस में आपको मिलेगा उसमें आपको सब्सिडीज ऐड करना पड़ेगा, और जो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है तो उसको बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा. सो अगेन इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी आपको फैक्टर उसमें से निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखो क्या बोला है इन्होंने, इफ यू सी दिस वेरी वेरी प्रॉपरली, देन दे हैव सेड इज कंज्यूमर सेंट्रिक, यू कैन से ये, तो आपको मार्केट प्राइस पे निकालना है. ओके, इफ यू see the market price, you will have to reduce the subsidies. आपको क्या करना पड़ेगा, deduction of the subsidies. Okay, why you have to deduce the subsidies? LPG cylinder is the best example. Yes or no? कि फैक्टर कॉस्ट में LPG मुझे 800 रुपए सिलेंडर पड़ा, बट गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी दे रहा है 200 रुपए, तो मैं कितना पकड़ूंगा, 600 रुपए ही पकड़ूंगा. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिमूव्ड द सब्सिडीज पार्ट.
excuse me, so I have reduced the subsidies. and इंक्लूजन होता है क्या टैक्सेस का? हाँ, बट कौन से टैक्सेस का इंक्लूजन होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जीएसटी ऐड करोगे ना. सो नॉट डायरेक्ट टैक्सेस, यू जस्ट इंक्लूड द इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो दिस इज नॉट देयर, सो वन इज नॉट देयर, ऑटोमेटिकली यू कैन गो देयर. टू हैज टू बी देयर. एंड एडजस्टेड टू इनइक्वालिटी मतलब क्या है? ये सब जो चीजें हमने कभी देखा ही नहीं है, तो ऐसा ही वेक कोई तो आपका ऑप्शन ऐड कर दिया है, इसके लिए द आंसर हैज टू बी 2 ओनली. ओके, दैट इज व्हाई कि अगर ऐसे कोई भी इकोनॉमिक्स में आपको क्वेश्चन पूछते हैं, जस्ट बी काम कंपोज्ड. आपका जो बेसिक थ्योरी है वो एक बार आप सोचो, और उसमें कहाँ पे ये बैठा सकते हो. उन्होंने सिर्फ ट्विस्टिंग किया हुआ है वर्ड्स का, तो वो कहाँ पे बैठा सकते हो आपको सिर्फ वो देखना है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट अकॉर्डिंगली. ओके, सो मार्केट प्राइस का अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, और मार्केट प्राइस जब भी आप या फैक्टर कॉस्ट आप सोचते हो, तो एलपीजी सिलेंडर सोचना है. एलपीजी सिलेंडर का मार्केट प्राइस कितना है? 600. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फैक्टर कॉस्ट कितना है उसका? 800. तो मार्केट प्राइस, अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे उसमें? तो आप यू कैन से सब्सिडीज माइनस करोगे, and what we would add is indirect taxes. So there the answer has to be only 2. Okay, any doubts in this? If you have doubts you can raise, otherwise we'll go to the basically the next one. Okay. नेक्स्ट अगेन यू कैन से जो यूपीएससी फोकस एरिया में हमेशा रहेगा, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, विच इज समटाइम्स सीन इन न्यूज. ओके, सो इसका आंसर क्या होने वाला है? इट इज डन बाय ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर. ओके, ये ग्लोबल इनोवेशन जो पॉलिसी सेंटर है, ओके, सो दिस ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इट इज बेसिकली अ सेंटर इन यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स. ओके, सो इट इज यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स का ये ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है, और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स निकालता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसके बारे में थोड़ा हमको पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ आवर फोकस एरियाज ना, कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कैसे इंप्रूव करेंगे, क्या करेंगे. सो यू कैन बेसिकली गो थ्रू ऑल दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्टली फ्रॉम यू कैन से योर लक्ष्मीकांत. अगर लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा है तो ये बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाओगे. 4 new judges were appointed to Supreme Court, taking its strength to 34. That is highest ever. In this context, consider the following thing: the Chief Justice of India and the judges of Supreme Court are appointed by the President under the Article 2 of the Indian under the Clause 2 of Article 124 of the Constitution. Are you understanding? This has to be 100% correct. Okay. The number of judges in the Supreme Court can be increased by the Parliament of India by enacting legislation. Yes, they can be increased. They cannot be reduced. ओके, दे कैन ओनली भी इंक्रीज का बात चला है वहां पे, रिडक्शन करने का बात कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे नहीं है. सो यू कैन से करेक्ट पूछा हुआ है. अगर करेक्ट पूछा हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये जाता है, ये भी जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली यू कैन से द आंसर हैज टू बी 1 ओनली, दैट इज ए फॉर एप्पल. सो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा है, लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा है, विच इज द बेसिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन very very easily, and you can say without any problems. Now next is again a very beautiful concept. Through economic questions we are trying to see that how you can apply your concepts, how we can cover more and more concepts, novel concepts, नए concepts, और वही concepts अलग अलग अगर टर्मिनोलॉजीज में भी कैसे हम कवर कर सकते हैं. तो ये मैंने आपको हम टेस्ट कर रहे हैं हर एक पेपर में. तो अभी ये पेपर में हम क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आए? टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. आप ऊपर क्या करोगे? आप ऊपर लिख दो जीडीपी. ऊपर क्या लिखोगे आप? जीडीपी. और नीचे आप क्या लिखोगे? तो फैक्टर प्रोडक्टिविटी. फैक्टर में मेजर 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं हमारा? एक है लेबर और दूसरा है हमारा बेसिकली कैपिटल, राइट. एंटरप्रेन्योरशिप इज देयर, और लैंड होता है. लैंड तो हमारे पास जितना है उतना ही है. ओके, तो हमारे 2 मेजर कौन से हैं? लेबर एंड कैपिटल. तो हम देखेंगे कि जीडीपी का रिलेशन लेबर और कैपिटल से, तो उसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्टिविटी फैक्टर. मतलब अगर हमारा जीडीपी 100 था, ओके, पहले, और लेबर और कैपिटल मिलके 10 है, तो हमारा प्रोडक्टिविटी कितना है? 10 यूनिट्स मिलके 100 यूनिट्स बना रहे हैं. 10 लेबर और कैपिटल अगर जुड़ गए तो कितना बना रहे हैं? 100 यूनिट्स बना रहे हैं. मतलब हमारा प्रोडक्टिविटी कितना है? एक यूनिट कितना बना रहा है? 10 बना रहा है. वही अगर हमारा 110 हो गया जीडीपी, और हमारा ये बढ़ा ही नहीं, हमारा लेबर भी नहीं बढ़ा था और हमारा कैपिटल भी नहीं बढ़ा था. मतलब हमने क्या किया? ईच
unit of labor or each unit of capital, they are contributing in a better way. अगर वो 10 ही रहे तो हमारा प्रोडक्टिविटी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, राइट? मतलब हमारा प्रोडक्टिविटी क्या हो गया है, हमारा प्रोडक्टिविटी हो गया है, बढ़ गया है. सो इट इज द रिलेटिव चेंज इन द जीडीपी ड्यू टू चेंज इन लेबर एंड कैपिटल. चेंज इन जीडीपी 100 ऊपर जीडीपी है, एंड चेंज इन लेबर एंड कैपिटल. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दिस इज द टोटल, यू कैन से, फैक्टर जो प्रोडक्टिविटी है. ओके, सो this seems to be the correct. It is one of the realistic measures in calculating the country's performance. Yes, country's performance. अगर आपका कंट्री का बहुत सारा लेबर आपके कंट्री में ऐड हो गया या बहुत सारा कैपिटल ऐड हो गया और जीडीपी छोटू सा बड़ा, तो आप बोलोगे जीडीपी तो हमारा बड़ा है, बट एक्चुअली आपका कंट्री का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है. तो एक रियलिस्टिक मेजर है ये करने का. इन द पास्ट 5 years इंडिया हैज बीन एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव, यू कैन से, TFP. नो, तो इंडिया कुछ नेगेटिव नहीं कर रहा है. अगर हम इसके, मैं आपको जब आंसर की दूंगा तो अगर आप देखोगे, इसमें पढ़ोगे, तो इंडिया का जो 2016 में था 3.5, 17 में था 1.6, 18 में था 2.4. ओके, ये TFP. सो इट इज नॉट इन नेगेटिव. ओके, और ये बहुत एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो जाता है. अगर आपको कुछ पता भी नहीं है तो भी एक बहुत एब्सोल्यूट हो जाता है ना स्टेटमेंट, तो आप एक रिस्क ले सकते हो कि बाबा नहीं, ये तो रॉन्ग हो सकता है. इतना एब्सोल्यूट कैसे होगा कि हमारा पास्ट 5 years से नेगेटिव ही चल रहा है? ऐसे थोड़ी ना है. मतलब इंडियन इकोनॉमी इतना भी थोड़ी ना कुछ बुरा यू कैन से काम कर रहा है. तो आप अगर ये भी एलिमिनेट कर लेते हो थर्ड वाला, तो आप 2 में पहुंच जाते हो. और फिर आपको 1 पे से करना है. 1 बहुत ही एकदम, अगर आप देखो कुछ भी पता नहीं है TFP के बारे में, तो भी आप ये सॉल्व कर सकते हो. थर्ड वाला बहुत एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, वहां पे रिस्क लेके उसको एलिमिनेट कर सकते हो. फिर आपके पास A और B बचा है. A और B में आपको क्लियर हो रहा है कि सेकंड हैज टू बी करेक्ट. ओके, एंड देन 1 तो बहुत ही एकदम मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट है जो उसमें प्रॉब्लम लाना थोड़ा मुश्किल है. इसके लिए आप बी के तरफ आंसर आपका जा सकता है, आप निकाल सकते हो, इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. ओके, सो एज आई हैव टोल्ड यू, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इट इज अबाउट बेसिकली स्पेस. स्पेस के ऊपर फोकस रहा है ये क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि स्पेस में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए. ओके, सो ISRO unveiled the first artificial intelligence based humanoid robot Yom-Mitra to support the crew in operations of ECLSS, Environmental Control and Life Support System, during their Gaganyaan mission. Which of the following statements best describes environment control and life support system? तो ये देखो, ये सारा आपका ये जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ओके, नासा ने दिया हुआ है. मतलब जो ये होगा आपका एस्ट्रोनॉट, तो उसके यूरिन सारा प्रोसेस करके देन यू कैन से अगेन यू गेट वाटर, देन ऑक्सीजन का लेवल्स मेंटेन करने हैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है आपको, ओके, वेस्ट प्रोड्यूस आपको सारा रिमूव करना है. तो ये सारा जो सिस्टम मैनेज करता है तो उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम. ओके, तो इसमें इज इट अ नेचुरल वे? नो, इट इज नॉट अ नेचुरल way, because you have used all these different processors, right? Okay, so it is not a natural way, so this is gone. The first is option is gone. Okay, irrespective of the number of crew members, oxygen supply is ensured. ऐसा नहीं है, so this is not there. If the crew member is not there, why would they run the entire process? Because it is a very energy consuming process. So this is also you can say not a correct, because उसका नाम ही दिया है ना, नाम में है लाइफ सपोर्ट है. आपको अगर लाइफ को सपोर्ट करना है तो ये सारा आपको चलाना है, नहीं तो क्यों चलाओगे आप ये सारा इतना. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. इट फिल्टर्स पार्टिकुलेट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड CO2 इन द केबिन एयर एंड सेपरेट्स द ऑक्सीजन फ्रॉम ट्रैप्ड CO2. नहीं, सो अगेन दिस वुड नॉट बी, यू कैन से, द करेक्ट वन. So the correct is actually the one which looks the least correct. It uses double walled crew module to avoid, you can say, जो depressurization है. So it is this answer. Okay, और double wall crew module क्यों यूज करते हैं? Yes, depressurization तो एक चीज है, बट डबल अभी वॉल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारे स्पेस डेब्रिज बहुत बढ़ गए ना. तो अगर छोटा भी डेब्री लग गया बाहर के वॉल को, then you should have a extra, you can say, wall which can prevent that damage, and the damage does not come to the inner wall because inner wall से अगर damage अंदर आ गया तो then फिर ये पूरा सिस्टम हमारा कोलैप्स हो सकता है. इसके लिए उनका डबल वॉल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई वुड
you can say urge you all, because we are going into the space for the first time, और ये गगनयान भी हमारा बहुत न्यूज में है, तो आप ये सारा चीजें एक बार पढ़ लो, और जो एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ECLSS, तो ये भी अच्छे से आप एक बार पढ़ लो. Okay, I'll give you the notes and you can read it from there. Next is a very straightforward question. If you see, with a reference to the Indian freedom struggle, which is not correct. So directive word क्या है? Not correct. So you have to immediately mark this. About the early nationalists who lived during the later half of the 19th century. Okay, they supported the import duties on items used by the rich and the middle class. Okay, ठीक है. Okay, they had faith in the British cents, ये तो हमको पता ही है. Okay, they advocated separation of judiciary and executive in India. हाँ, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी आपको ये दिखता है चीज. Okay, they opposed holding of ICS in India and England simultaneously. No, this was in fact their demand. How can they oppose this? Not correct पूछा हुआ है ना, so this has to be not correct because they have not opposed. उनका तो ये डिमांड था कि आप साइमल्टेनियसली लो. कैसे हमारा जो यंग यू कैन से इंडियन है वो यहाँ से इंग्लैंड जाएगा, सारे आपके सब्जेक्ट्स पढ़ेगा और टेस्ट देगा, उसके अलावा अगर इंडिया में ये टेस्ट होगा, then it would be much more convenient for that guy to give the test. Okay, so that is why very clear, very straightforward, very easy. Should not make mistake in this. अगर यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो तो फिर ये बहुत बेसिक एरर है, ये कार्डिनल सिल है, आपके बहुत सारे मार्क्स कम हो जाएंगे और फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका. तो इधर मिस्टेक नहीं करना चाहिए आप लोगों ने. ओके, फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपको पूछ लिया है गवर्नर का. बहुत ही यू कैन से सिंपल है. अगेन गवर्नर इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ द महाराष्ट्र का जो क्राइसिस हुआ था सीएम का, तो गवर्नर वाज इन न्यूज. तो इसके आपको पावर्स एंड फंक्शंस पता होने चाहिए गवर्नर के, और इसमें का जो ये बेसिक है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, वो तो आपको बहुत ही अच्छे से आपको आना चाहिए. ओके, डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए, और आपने इजीली इसको सॉल्व कर देना चाहिए. तो अगर आप सॉल्व कर पाए हो इसको इजीली, तो आपको समझेगा. उसका डिस्क्रिशनरी पावर होता है गवर्नर का? नहीं, इट हैज टू बी एक्सरसाइज विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो गवर्नर ऐसे ही ऑर्डिनेंस बना सकता है क्या? नहीं, उसका मन हुआ ऑर्डिनेंस बना दिया. नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, उसका डिस्क्रिशनरी नहीं है वो. हैज टू बी इन द एड एंड एडवाइस ऑफ द States Council of Ministers. So absolutely this is correct. So ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया. The governor himself or herself is competent to withdraw the ordinance promulgated. हाँ, ये भी डायरेक्ट लक्ष्मीकांत में लाइन लिखा हुआ है कि बाबा, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी है हमारे. So he can withdraw the ordinance. So that is, you can say, correct. Okay, so if this is correct, automatically this has to go. Okay, the scope of ordinance making power of the governor is co-extensive. तो अभी आपको ये वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तो आप सॉल्व कर पाओगे ना. with the legislative powers of the state legislature, yes, they are co-extensive. Co-extensive मतलब क्या है? He cannot directly make ordinances on the, you can say, subjects which are there in the union list. He can only make ordinances on the subjects which are there in the state list. So they are co-extensive. Are you understanding this? So this is also correct. So the answer has to be basically the D वाला ही इसमें आंसर होना चाहिए. Okay, very very straightforward, very very nice. Okay, यूपीएससी भी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछती है बीच में से बेसिक. हमको यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करने हैं, इसके लिए हम लक्ष्मीकांत इतना यू कैन से डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा मिस्टेक नहीं होना चाहिए. अगर यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है तो गड़बड़ है हमारा. Okay, now let us go to the, you can say, next question. Very very, you can say, again easy question. अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है, आर्ट एंड कल्चर के हमारे लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं, मैंने जो आपको ट्रिक बताया था वो अगर आपको याद है तो. ओके, ये रत्नावली. ओके, सो रत्नावली, if you know the trick, then you will always remember that Ratnavali is by हर्षवर्धन. हर्षवर्धन, जिसको जो संस्कृत में अलग अलग 3 प्लेज लिखे हुए हैं. ओके, उसके लिए उसको लिटरेरी मोनार्क भी कहा जाता है, दवक भी कहा जाता है. और हमने कैसे याद रखे थे दोस्तों? आपको याद रखना है कि हर्षा के जो प्लेज है संस्कृत में है सारे, और कौन से कैसे याद रखना है आपको? उसके प्ले का नाम PNR, टिकट पे होता है ना PNR, वैसे ही हर्षा के प्लेज आपको याद रखने हैं. ओके, नाग आनंदा, प्रियदर्शिका, नाग आनंदा एंड रत्नावली. सो दिस आर बाय हर्षा. ओके, तो अगर आपको ये पता है, करेक्टली मैच पूछा है, डायरेक्टिव को हमेशा क्या करो?
डायरेक्टिव को ऐसे इनसर्कल कर लो ताकि आप करेक्ट रॉन्ग में कभी गलत नहीं कर पाओगे, तो 1 इज गॉन। यस और नो? और अगर आपको अभी क्या, थर्ड तो करेक्ट ही है, ये तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, फिर थर्ड करेक्ट ही है। ओके, आपको सिर्फ क्या देखना है, सेकंड वाला सीन क्या है। ओके, अगर आप सेकंड वाला देखते हो तो आपको क्या दिखता है, ये साउंड, यू कैन से सौंदर आनंद। ओके, तो ये वाला जो स्टोरी है सुंदरी एंड आनंद, तो उसमें किसने लिखा हुआ है, ये अश्वघोष। दो चीजें अश्वघोष के बहुत फेमस है, एक है बुद्ध चरित्र एंड दिस इज, यू कैन से जो सौंदर्य और आनंद का स्टोरी है वो वाला काव्य है। ओके, सो दिस यू शुड बी एबल टू नो। ओके, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो अश्वघोष का ये दोनों, मतलब अश्वघोष के दोनों बहुत ही फेमस वर्क्स है, और विशाखादत्ता देवी चंद्रगुप्तम इज अगेन वेरी 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 पॉपुलर। ओके, सो द आंसर हियर हैज टू बी बी फॉर बॉम्बे। आंसर हैज टू बी बी फॉर बॉम्बे। ओके, देखो नेक्स्ट इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ आई हैव नॉट रेड, ट्रस्ट मी, एनवायरमेंट इकोलॉजी सिंस एटलीस्ट 5 to 6 years। ओके, सो बट स्टिल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो जस्ट सी द ट्रिक टेक्निक कि बाबा एनवायरमेंट इकोलॉजी क्या है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ओके, दिस इज, मतलब व्हेन आई वाज सॉल्विंग दिस पेपर, डस सॉल्व, यू कैन से अंडर विच कंडीशंस डस सॉइल बिकम मोर एसिडिक। ओके, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, पहले तो 3 ऑप्शन देखता हूँ ये। ओके, फिर ये वाले 3 देखता हूँ, नन ऑफ द अबव है क्या, नन ऑफ द अबव है नहीं, मतलब कौन सा तो भी एक करेक्ट होने वाला है। अगर कौन सा तो भी एक करेक्ट होने वाला है इसमें का, ओके, सो अभी देखो मेरा मतलब अगर नन ऑफ द अबव रहता तो मुझे थोड़ा टेंशन आता, क्योंकि फिर मुझे नॉलेज नहीं है ना। तो अभी मुझे एक तो हिंट मिल गया है कि इसमें का कौन सा तो एक तो करेक्ट है। ओके, ये वाला हिंट मेरे को मिल गया है, कौन सा तो एक करेक्ट है। तो अभी कैसे करना है आपको, मेरा लॉजिक में कैसे लगाया देखो इसको, कि ओवर यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ओके, अभी केमिस्ट्री भी मेरा वीक है, इतना कुछ मुझे साइंस में आता नहीं है, तो नाइट्रोजनस ओके ओवर यूज कर दिया। बट स्कूल में एक चीज पढ़ा है आपने कि कल्टीवेशन ऑफ अगर लेग्यूमिनस क्रॉप करते हो, तो मुझे एक याद था कि उससे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन बढ़ता है। मतलब क्या याद आता है मुझे कि आप क्या करो, वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स लगाओ, मतलब क्या लगाओ, आप ग्राउंडनट वाउंडनट लगाओ, ताकि अगले क्रॉप में आपका जो सॉइल न्यूट्रिशन है वो बढ़ जाता है, ऐसा कुछ तो मुझे याद है। ओके, आई माइट बी रॉन्ग बट आई एम करेक्ट, एटलीस्ट आई नो दैट। सो दिस टू आर सिमिलर, नाइट्रोजन ज्यादा है फर्टिलाइजर में, और इससे भी नाइट्रोजन ज्यादा होता है सॉरी, नाइट्रोजन ज्यादा है सॉइल में, और इससे भी ज्यादा होगा नाइट्रोजन इन द सॉइल। ओके, तो 2 and 3 वाला ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो और मेरे को एक, यू कैन से, इजी हो गया। अगर ऑप्शन 2 and 3 होता तो मुझे टेंशन आ जाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट अभी, सो व्हाट इज माय लॉजिक इज कि ये दोनों में अगर नाइट्रोजन ज्यादा है तो दोनों करेक्ट होने चाहिए या दोनों रॉन्ग होने चाहिए, यस और नो? ओके, बट दोनों रॉन्ग तो हो नहीं सकते, क्योंकि यू कैन से ऑप्शन ऐसा एक है, वन ओनली। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट आई फील दैट आई टेक अ चांस दैट बोथ ऑफ देम आर, you can say, correct, because it becomes acidic. Then only option which you have got which has 2 and 3 is this and higher rainfall में मैंने क्या लॉजिक लगाया कि बाकी के उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे वॉश आउट हो जाते रहेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये भी थोड़ा मुझे याद है इन ज्योग्राफी, व्हाट आई हैव लर्नड इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो कैशू और ये सब जो है ये कहाँ पे बनता है, कोंकण में बनता है, हमारे गोवा में बनता है, वहाँ पे बहुत बारिश होता है। और मेरे को, आई डोंट नो व्हाई, बट आई रिमेम्बर दैट कैशू एंड ऑल दिस लीचिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे थोड़ा एसिडिक सॉइल होता है, तो इसके लिए आई हैव टू गो विद दिस आंसर। तो ऐसे अगर आपके एसोसिएशन बना के रखते हो, एमसीक्यू सॉल्विंग की टेक्निक परफेक्ट करके रखते हो, यू कैन कम टू द आंसर नो मैटर व्हाट। एंड नॉलेज अगर थोड़ा कम भी होगा तो भी आप राइट आंसर एमसीक्यू में तो आ ही जा सकते हो। एमसीक्यू इज, यू कैन से, इफ यू फर्स्ट मतलब मास्टर कर लोगे आप आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट दैट यू सॉल्व एनीथिंग इन अ रॉन्ग वे ऑफ द एमसीक्यू। Okay, now next is very current based. Recently WHO had declared COVID-19 as an international emergency pandemic. Which of the following is the implication of the declaration? तो अगर pandemic declare हो गया तो उसका implication क्या है? Will send expert doctors to every member state, 180 member states, every उतने doctors है क्या? Okay, तो नहीं, this has to be wrong. WHO immediately bans all modes of, नहीं, WHO के पास power ही नहीं है. WHO does not have power, and I had, you can say,
heard or I had followed the WHO guidelines, and also you should know that अभी जो international crisis आया है, such a interesting and such a proud you can say movement for India, that ये जो पूरा क्राइसिस है, तो ये क्राइसिस में दो सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस है और दो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है जो ये क्राइसिस हैंडल कर रहे हैं. वन इज WHO, राइट, बिकॉज इट इज अ हेल्थ क्राइसिस. एंड अदर क्राइसिस क्या होने वाला है, बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस. तो अदर इज बिगेस्ट इंस्टीट्यूट इज IMF, एंड बोथ in WHO the chief scientist is Indian, Swaminathan, MS Swaminathan, you all know, right, the father of Indian Green Revolution. So the daughter of MS Swaminathan, Soumya Swaminathan, is the chief scientist at WHO. So I had you can say heard her interview in depth about what WHO did and what were the problems. So ये तो powers है ही नहीं WHO के पास. और दूसरा क्या है, IMF. So the chief economist you all know is Geeta Gopinath of again India. Okay, so both are wrong. So answer has to be, you can say, neither. Okay, so 20 का D answer straightforward आप वे में ला सकते हो. Now again a beautiful thing, beautiful question. He was a mathematician turned astronomer, historian, journalist, philosopher, political leader of India. He wrote a book on the origin of Aryanic people. He was one of the founders of the Deccan Education Society. रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ये सॉल्व करने के लिए, बट फ्रॉम महाराष्ट्र आई थिंक एवरीबडी कुड सॉल्व बिकॉज ऑफ everybody knows, right, origin of, you can say, Aryans. He talked about Deccan Education Society in Pune. You have studied in Pune, so आपको तो पता ही होना चाहिए कि इसका जो आंसर है that has to be बाल गंगाधर तिलक. Okay, so that has to be the answer. Next, if you see crowding out effect. Okay, crowding out effect. तो ये क्यों पूछा अगेन, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ने वाला है, गवर्नमेंट बोरोइंग बहुत बढ़ने वाला है, तो क्या क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो सकता है क्या? दैट इज द क्वेश्चन ऑन एवरीबडीज माइंड्स. ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन इंड्यूस क्राउडिंग आउट इफेक्ट? ऐसा ये क्वेश्चन ही बहुत ब्यूटीफुल वे में पूछा हुआ है. कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स. क्राउडिंग आउट का तो हमको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भाई 100 रुपए है हमारे पास, गवर्नमेंट कितना बोरो कर रहा है, गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करेगा तो प्राइवेट के पास हमारे पास कम रहेगा, ये और नो, तो वो क्राउडिंग आउट है. तो बैंक्स, इसका कुछ नहीं लग रहा है. अंडर परफॉर्मेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, कुछ नहीं लग रहा है हमको. फिस्कल कंसोलिडेशन इन द इकोनॉमी, तो उल्टा अच्छा है. फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब क्या है कि गवर्नमेंट उसका फिस्कल डेफिसिट कम कर रहा है, गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट कम कर रहा है. फिस्कल डेफिसिट क्या दिखाता है? बोरोइंग. तो मतलब गवर्नमेंट का जो बोरोइंग है, गवर्नमेंट का बोरोइंग क्या होने वाला है? गवर्नमेंट बोरोइंग इज गोइंग टू basically reduce. And if the government borrowing is basically reducing, okay, if the government borrowing is basically reducing, then what is going to happen is they will not borrow more. तो मार्केट में पैसा रहेगा ज्यादा, मार्केट में ज्यादा पैसा रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्राइवेट लोगों के पास पैसा, प्राइवेट पीपल कैन बोरो मनी मोर एंड गवर्नमेंट विल बोरो लेस. सो नो क्राउडिंग आउट. ओके, सो इट इज इनफैक्ट नॉट दिस थिंग. उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. फिस्कल कंसोलिडेशन से उल्टा अपोजिट होगा क्राउडिंग आउट से. ओके, और हायर गवर्नमेंट बोरोइंग मतलब क्या है? हायर फिस्कल डेफिसिट, एंड दिस वुड इंड्यूस द crowding out effect. So very straightforward, good question, testing your concept, and you should get it right because your concepts are in place. So D has to be the answer. This is a question which I loved. Okay, आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. ओके, अभी लॉकडाउन में तो ये देखो, लॉकडाउन चल रहा है और कहाँ का घूमने का प्लान बना रहे. आइटिनरी इंक्लूड्स काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम, यू कैन से, देन कोणार्क सन टेम्पल, दार्जिलिंग, ओके, एंड हम्पी. ये सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घूमने हैं और हम बैठे घर में. सो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बेंगलुरु, आप कहाँ हो? बेंगलुरु. तो बेंगलुरु से पहले कहाँ जाओगे? ऊपर. ऊपर क्या आएगा? हम्पी. हम्पी से आप कहाँ पे जाओगे? यू विल हैव टू गो टू सन टेम्पल. सन टेम्पल से कहाँ पे जाओगे? दार्जिलिंग वाला देख लो, एंड फिर आप काजीरंगा देख लो. शॉर्टेस्ट रूट देखो यहाँ पे. one state. Second state you will have to go in Andhra Pradesh. Third state you will have to go in Odisha. Fourth state you will have to basically, ओडिशा में सन टेम्पल देख लिया, मतलब 2 हो गए आपके. फोर्थ स्टेट वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है. दार्जिलिंग में आपने वो आपका ये देख लिया, क्या था हमारा दार्जिलिंग में? वो ट्रेन है ना, तो आपने दार्जिलिंग वो देख लिया. एंड देन यू गो टू बेसिकली द काजीरंगा. सो अगर हम देखते हैं हाउ मेनी स्टेट्स, 1 2 3 4 5. सो आंसर हैज टू बी 5 states. So answer has to be
basically 5 states. I hope everybody agrees. Okay, प्राइवेट चैट में बताओ मेरे को किसने किसका इसका करेक्ट आया है. आई रियली वांट टू सी कि इतना अच्छा ज्योग्राफी किसका है. प्लीज राइट इन द प्राइवेट चैट एंड इन्फॉर्म मी हु ऑल गॉट दिस करेक्ट. Okay, so who has got it correct? Okay, very good. Raj Lakshmi has got this correct. Akash has got it. Nikhil has got it. Redmi, Swati, very beautiful, very nice. Okay, Galaxy, Pratiksha, good, 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 good. Okay, very nice. Now consider the following statements about the Constitution of High Court in India. Okay, so Constitution of High Court in India. Now, Constitution of High Court, the President has the power to appoint additional judges to any of the High Court in India, temporary, not exceeding 2 years, directly from Constitution. Correct hai? Okay. Then the President of India can appoint acting judge to the High Court when the permanent judge of that High Court, other than this, is temporarily absent or unable to perform his or her duties. This is also absolutely correct. अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली पीएम बख्शी पढ़ते हो तो आपको तो समझ जाएगा. Neither an additional or nor acting can hold 62 beyond the age of 62. All are correct. 1, 2, 3. All have to be correct. No problems at all. प्लीज गेट दिस करेक्ट बिकॉज दिस इज वेरी वेरी बेसिक. इस बार पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे हैं वो बहुत बेसिक पूछे हैं, अच्छे पूछे हैं. आपको सारे करेक्ट इसमें से आ जाने चाहिए. ओके, देखो ब्यूटिफुली यू कैन से मतलब ये पेपर बनाया हुआ है कंप्लीटली. अगर आप देखोगे तो यूपीएससी पैटर्न में ही आपको पेपर मिलेगा. यूपीएससी जिस टॉपिक से फोकस करते हैं वही टॉपिक्स है यहाँ पे. लैंग्वेज भी थोड़ा वैसा है, फॉर्मेटिंग भी देखो हमने ऐसा ही किया हुआ है. वी हैव taken, you can say 4 to 5 questions on a page just like UPSC does, so taking you more and more closer to the exam. और अब भी आपको जितने मार्क्स मिले हैं so it is like मतलब उतने उससे 5 मार्क आप सिर्फ जोड़ लो, उतना आप यूपीएससी में आपको ज्यादा मिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. तो आपका लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपको एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक इंप्रूव करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा इससे स्कोर चाहिए होगा तो. कंसिडर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैन Buddhist both sorry consider the following statements. Both Buddhist text and Jain text criticize Brahmanas. Yes, they criticize, you can say, this Brahmans. Then Jain texts reflect the idea of the superiority of Kshatriya Varna over others. This you can be a little doubtful. चलो इसको हम पकड़ते. People from any social backgrounds could enter Jain Sangha. हाँ, सबको अलाउड किया था ना, शूद्रा उद्रा सबको अलाउड बेसिकली you can say किया हुआ है. तो 1 and 3 तो मुझे ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है. तो मोस्ट प्रोबेबली यू कैन से द आंसर हैज टू बी 1, 2, 3. ओके, सो इवन इफ यू डोंट नो दिस प्रॉपरली, ओके, डोंट वरी, ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा. क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि सारे यू कैन से बैकग्राउंड में से लोगों को लिया हुआ है, तो लिया हुआ है. ऐसे कुछ बोला नहीं ये बैकग्राउंड से आओ मत, वो बैकग्राउंड से आओ मत. एंड बोथ बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट क्रिटिसाइज ब्राह्मणास, ये भी पता है आपको. ओके, yes. You want to contribute, Mohini, anything? No, sir. Okay, ठीक. So answer here has to be D. Okay. Succession is a process of directional change in vegetation. Okay, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ये क्या है, डायरेक्शनल चेंज है. सक्सेशन वेजिटेशन ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम. दिख रहा है. Succession is a process of directional change in vegetation on ecological time scale. In this regard, consider the following statements. Okay, the first plant to colonize an area is called as pioneer community. हाँ, ये तो सही है. Final is succession. Stage of succession is climax community. सही है. Can be primary or secondary based upon the development of communities over new sites, or you can say well-developed soil. Correct. Then allogenic, autogenic, genic based, yes, this is also correct. Autotrophic and heterotrophic based upon the abundance of the green plants. So all have to be correct. Directly taken from Shankarayas. तो अगर आप शंकरायस पढ़ते हो तो आपको ये सारे फंडे एकदम ही
आपके क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो प्लीज रीड द शंकर आयस, उसमें से डायरेक्टली ये लिया हुआ है. ओके, नेक्स्ट, very simple. Which of the following city is first to receive southwest monsoon winds? तो हमेशा याद रखना है winds जो होते हैं तो उनके नाम कैसे गिरते हैं, from the area from of their origin, तो जहां से आते हैं